Assalamu alaikum dear students. Students, now we are going to see that how the bonding is taking place in the carbon compounds. Carbon, okay, how the carbon is binded. First of all, carbon is having atomic number 6. Atomic number is a number of electron. So there are 6 electrons which are rotating in the circular orbit, okay, and there are 6 protons and 6 neutrons, okay. In the earth crust, we are able to find out the carbon in the form of the carbonates and bicarbonates. So dear student, this is the sources we are talking about, that how the carbon is available, okay. Then that is 0.03 percentage, and in the atmosphere we are able to get the carbon in the form of carbon dioxide, which is 0.02 percentage. So the question arises, though the percentage is very low, still we are having so many carbon compounds. So why we are having so many carbon compounds? So we need to understand that what type of bonding is taking place in the carbon. Okay dear student, as I told you just now that carbon is having atomic number 6. So 6 protons, 6 neutron and 6 electrons are present in the structure of the carbon. But in class 9 we have studied that outermost shell, आपका outermost shell चाहे जो भी हो उसमें 8 electrons होने चाहिए. यहाँ पर कितने हैं? 4. Okay, so as we say that there are 4 electrons, you know, we have to complete the orbit. So what we can do? There are two possibilities. Either we can take 4 electrons from any particular element and we can fulfill it and make it 8 electrons in the outermost cell, or else we can remove the 4 electrons from the outermost cell and we can just have 2 electrons in the first orbit. So dear student, let me tell you, by doing this we are arriving the noble gas one configuration. मतलब कि अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो कार्बन -4 बन गया, और अब आप ये देखिए 6 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और 6 न्यूट्रॉन्स है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सो डियर स्टूडेंट, कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता, नॉट एट ऑल पॉसिबल. ऑन द अदर हैंड, इफ ही लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन विल बिकम 4 प्लस मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. सो डियर स्टूडेंट, अगेन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन हो वो चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट फिजिबल. कार्बन 4- इज ऑल्सो नॉट फिजिबल. मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर अपनी स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता. ओके, व्हेन वी गिव और टेक द इलेक्ट्रॉन वी आर एबल टू फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. अब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वी विल गो फॉर मेकिंग द अनदर बॉन्ड विच इज possible, that is known as a covalent bond, and covalent bond is formed by sharing of electron. Okay, हम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, not the complete transfer of the electron. complete transfer का मतलब ionic हो जाएगा. So here we are going to do the sharing of electron. Let us see the sharing in the simple compounds like hydrogen. अच्छा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन. जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, के शेल जो होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपस में शेयरिंग हो रहा है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन गया. Similarly, we have the oxygen which is having 8 electrons. So उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ 2 and 6. 6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा? एक एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर रहा है. यू आर एबल टू सी द पिक्चर डायग्राम एंड इट इज एबल टू फॉर्म द ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता तो सिंगल बॉन्ड होता. लेट अस सी द पिक्चर डायग्राम अगेन. सी हियर यू आर एबल टू सी पर्पल एंड येलो कलर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो कार्बन, आपका जो ऑक्सीजन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे खुद के और 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले ने शेयर किए तो 8 हो गए. सिमिलरली सामने वाले के भी 6 थे और जो येलो वाला है उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब कि वहां पे 8 हो गए. सो दिस इज नोन एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज not the complete transfer, only the shifting the electron in the area. Okay, this is the last example of your nitrogen which is sharing 3 electrons. Why sharing 3 electrons? क्योंकि उसका atomic number 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ 2 and 5. 5 मतलब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. 5, 6, 7, 8, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस. तो आपका जो नाइट्रोजन है उसको अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन सामने वाले नाइट्रोजन के साथ शेयर करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N आएगा. हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. जितना नंबर ऑफ शेयरिंग उतने बॉन्ड. नाउ सी व्हाट हैपेंस इफ वी टॉक अबाउट दी कार्बन.
कार्बन के पास आउटर मोस्ट में जो डॉट्स है येलो कलर के वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए। आर यू एबल टू गेट द आइडिया? तो ये जो सिंपलेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है मीथेन। दिस इज द मीथेन मॉलिक्यूल CH4। इफ वी राइट इट एज अ CH4। हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया। ओके, सी हियर आई एम गिवन यू द डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली ओवर हियर दैट कार्बन जो है वो 2 and 8 हो जाए तो वो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन से मैच होगा, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस। और हाइड्रोजन के पास एक ही था और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो इट इज अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीलियम। कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन देकर या तो लेकर या तो शेयरिंग करके जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनाएगा। So herein we are able to see that one carbon is sharing its 4 electron with each of the hydrogen forming the methane molecule. So you can write it also this one if you require it because it is important and it is clearly showing how the sharing of the electron is taking place. Dear students, still if you have any doubts you can ask me in the comment section. Okay. Let us see some more examples over here. कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है। तो आप सोचेंगे बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे वो, सो डियर स्टूडेंट बाकी के जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन बचे उसके साथ हाइड्रोजन जनरली शेयरिंग कर लेता है और आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। सो यू कैन से दैट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन कार्बन एंड carbon. We will see their names also, what they are called when it is single bond, double bond and triple bond. फिलहाल सिर्फ अपना ये समझ लीजिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. Okay dear student, so this is how it is fulfilling its orbits and by sharing the compound formations are taking place. So we can say that in carbon the bonding is taking place that is completely covalent bond. Carbon कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता. आपको ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद कर लेनी है. कार्बन कैन नॉट एवर फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. गिव एंड टेक पॉसिबल ही नहीं है. कार्बन हमेशा क्या करेगा, शेयरिंग करेगा. सी हियर द एग्जांपल्स अगेन आई हैव गिवन. हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन. फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है. एंड ऑक्सीजन आई हैव ऑलरेडी शोन यू, बट ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ CO2 जो बनाता है डबल बॉन्ड से बनाएगा, and fluorine and carbon that is CF4. The structure is clearly given to you. Dear students, this is a very important examples. Okay, let me tell you one more important thing. हम अगर एलिमेंट लिखते हैं जैसे हमने कार्बन का C लिख दिया और उसके सराउंडिंग में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम डॉट्स के फॉर्मेट में रख दे तो वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो आप जो अभी जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो अभी सामने जितने भी आपके एग्जाम्पल्स है दोज ऑल आर दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द given compounds. So dear student, in our next video we will be starting with the next topic.